राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्टार्ट विद आदित्य में। तो आज जो है मैं आपको अब इंग्लिश के क्वेश्चन करा रहा हूं, जिस सेट के कल मैंने आपको सीडीपी कराई थी उसकी इंग्लिश की। और संस्कृत के लिए कमेंट आया है तो मैं आपको संस्कृत की एक वीडियो दे दूंगा। संस्कृत की क्लासेस कंटिन्यूस कराता रहूँगा, क्योंकि मुझे लगा संस्कृत के लिए लोग हैं नहीं, तो फिर इसलिए नहीं, अगर कमेंट आया तो मैं आपको संस्कृत भी प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, आज से आपकी मैं कंटिन्यूस वीडियो आपको मिल रही है। डेली आपको 3 से 4 वीडियो मिलेंगी। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि पूरा सेट एक ही वीडियो में आ जाए तो वो भी मैं आपके लिए कर दूंगा, आप बस कमेंट कर दीजिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहें। तो सबसे पहले इंग्लिश में मैंने आपको बताया गद्यांश आएगा, और एक और गद्यांश या काव्यांश मतलब पोइट्री या पैसेज। दो टोटल दो आने और 15 क्वेश्चन आने। 15 क्वेश्चन जो हैं वो आपके नॉर्मल जनरल इंग्लिश से आएंगे। तो जब भी पैसेज पढ़ें तो कुछ क्वेश्चन देख लें। पैसेज है, शी टुक मी इन टू द स्टेशन डाइनिंग रूम, ऑर्डर टी एंड समोसा एंड जलेबीज, एंड एट वंस आई बिगेन टू थॉ एंड टेक अ न्यू इंटरेस्ट इन दिस काइंड ऑफ वुमेन। द स्ट्रेंज एनकाउंटर हैड लिटिल इफेक्ट ऑन माई एपेटाइट, आई वॉज अ हंग्री। चलिए, तो ये आपका पैराग्राफ है। इसमें करीब आपके जो पैसेज हैं, अब मैं यहाँ पे इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि उनके जो उत्तर हैं वो मुझे पता चलिए, फिर भी मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। स्कूल बॉय एंड आई एट एज मच आई कुड एज इन पोलाइट अ मैनर एज पॉसिबल। शी टुक ऑब्वियस प्लीजर इन वाचिंग मी ईट, एंड आई थिंक इट वॉज द फूड that strengthened the bond between us and cemented our friendship. For under the influence of the tea and sweets, I began to talk quite freely and told her about my school, my friends, my likes and dislikes. Second है, she questioned me quietly from time to time but preferred listening. She drew me out very well and I had soon forgotten that we were strangers. But she did not ask me about my family or where I lived, and I did not ask her where she lived. I accepted her for what she had been to me, a quiet, kind and a gentle woman who gave sweets to a lonely boy on a railway platform. After about half an hour, we left the dining room and began walking back along the platform. An engine was shunting up and down beside platform number 8, and as it approached, a boy leaped off the platform and ran across the rails, taking a shortcut to the next platform. He was at a safe distance from the engine, and there was no danger unless he had fallen. But as he leaped across the rails, the woman clutched my arm. Her fingers dug into my flesh, and I winced with pain. I caught her fingers and looked up at her, and I saw a span of pain and fear. She watched the boy as climbing other platform, and it was not until he had disappeared in the crowd that she relaxed her hold on my arm. She smiled at me reassuringly and took my hand again, but her fingers trembled against mine. Read the following combination and choose that one that does not match the woman's character. She was inquisitive. She provoked the author by asking questions. She was a good listener. She preferred listening. She was kind and compassionate. She offered him food. She was sensitive and caring. She was afraid the boy might get hurt. तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है। ए आपका हो जाएगा, शी वॉज इंक्विसिटिव, शी प्रोवोक्ड द ऑथर बाई आस्किंग क्वेश्चंस। चलिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट प्रोबेबली स्ट्रेंथन द बॉन्ड between the author and the woman, seeking company, loneliness, food, love for talking to strangers. तो आपको जो सही है वो सी है। According to the passage, the food that strengthened the bond between us and cemented our friendship, para 1. Thus the correct answer is option C. दोस्तों, डिस्टर्बेंस के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा क्षमा चाहूँगा। How did the author respond to woman behavior? Freely, suspiciously, cautiously, hesitantly.
माफ करिएगा दोस्तों। हाउ डिड द ऑथर रेस्पॉन्ड टू वुमेन बिहेवियर? फ्रीली, सस्पिशियसली, कॉशियसली, हेजिटेंटली। तो ए आपका सही है, फ्रीली। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट। The boy was at a safe distance from the engine. The woman clutched the author's arm. The woman smiled at author reassuringly. The author caught her fingers to climb the stairs. तो D आपका सही है। The author caught the fingers to climb the stairs. चलिए। I saw spasms of pain and fear and sadness pass across her face. This implies that the woman was very weak at heart, had been through a similar experience, was very sensitive and touchy, was very loving and care. तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है और बी आपका हो जाएगा had been through a similar experience. She smiled at me reassuringly and took my hand again, but her fingers trembled against mine. The woman was undergoing a conflict of emotions. Read the following statement and select the most suitable explanation for the same. तो ए जो है द वुमेन वॉज रिलीव्ड फॉर द बॉय बट वॉज स्टिल स्केयर्ड. द वुमेन वॉज शैलो एंड डिडंट हैव डेप्थ इन हर इमोशंस. द वुमेन वांटेड टू कंफर्ट द ऑथर बट वॉज पेट्रिफाइड फॉर द बॉय. द वुमेन वॉज कंप्लीटली कंफ्यूज. तो सी आपका सही है, द वुमेन वांटेड टू कंफर्ट द ऑथर बट वॉज पेट्रिफाइड फॉर द बॉय. Identify the part of speech in the underlined part of the following sentences. She took obvious pleasure in watching me eat. Participle, gerund, noun, adverb. तो A जो है वो आपका सही है, इसमें जो है participle है. Which of the following words in para 4 means the same as flinched? तो flinched का same meaning होता है दोस्तों, winced होता है. Trembled, winced, relaxed, smiled. तो B आपका सही होगा, winced. Which of the following word is opposite in meaning to the word tremble as used in para 4? तो tremble का opposite होता है steady. Quiver, throb, C है jitter, D steady. तो D आपका सही है, steady. Trembles means to shake involuntarily. Thus the correct answer is option D. अब आपका यहाँ पे पोइट्री की कुछ लाइन्स हैं तो इनको हमें पढ़ना है. और पोइट्री की लाइन्स हैं, हैप्पी द मैन whose wish and care a few paternal acres bound, content to breathe his native air in his own ground tree, whose herd with milk, whose fields with bread, whose flocks supply him with attire, whose trees in summer yield him shade, in winter fire. Sound sleep by night, study and ease, together mixed sweet recreation and innocence, which most does please with meditation. Thus let me live, unseen, unknown, thus unlamented let me die, steal from the word and not a stone, tell me where I lie. चलिए, तो आपका इसमें जो 10th क्वेश्चन है इसका पोइट्री का पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड अप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्ट द फील ऑफ द पोएम? सीरीन, सोम्बर, डिसमल, ऑस्टेयर. तो आपका सही उत्तर है वो है सीरीन. अकॉर्डिंग टू द पोएम, सीरीन इज अ वर्ड विच अप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्ट द फील ऑफ द पोएम. तो अब आप एक और चीज़ याद रखिए कि आपकी जो पोइट्री और पैसेज है, गद्यांश और काव्यांश है, इनमें से क्वेश्चन गलत नहीं करने. 15 में से लगभग 15 तो आपको करने ही चाहिए, क्योंकि जो सामान्य इंग्लिश के प्रश्न आएंगे उनमें आपके गलत हो भी सकते हैं, तो उनको भी हमें सही करना है, हमें इस बार सिलेक्शन लेना है. अगर आप सिर्फ यही वीडियो देख रहे हैं तो एक बार प्लेलिस्ट जाकर जरूर देखें और उनसे लाभ जरूर उठाएं. चलिए, साउंड स्लीप एक्लेमेशन पैटर्नल एकर्स फ्रेश एयर. तो आपका बी सही है, बी है एक्लेमेशन. अकॉर्डिंग टू द पोएम, द वर्ड एक्लेमेशन इज नॉट coveted by men. Acclamation means a loud eager expression or approval phrase. What does the word stone in last stanza refer to? तो ये पूछ रहे हैं कि जो stone word है वो लास्ट पैराग्राफ, जो लास्ट स्टैंजा है, लास्ट लाइन है, उसमें stone word किसको रेफर किया जा रहा है, किसके लिए बोला जा रहा है, ये हमें बताना है. सैंड स्टोन, लाइम स्टोन, प्यूमाइस स्टोन और टॉम्ब स्टोन. तो डी आपका सही है, टॉम्ब स्टोन. The word stone in the last stanza refer to tombstone. It means a stone that is used to mark a grave. How can the innocence of a man be given a boost? Containment, health, meditation, food. तो C है आपका
मेडिटेशन, तो अकॉर्डिंग टू द पॉइंट द इनोसेंस ऑफ अ मैन बी गिवन अ बूस्ट विद मेडिटेशन, तो बता रहे हैं कि जो आदमी का सीधापन है, जो आदमी सी है, मासूम है, उसको कैसे एकदम बूस्ट किया जा सकता है, तो वो मेडिटेशन, ध्यान के द्वारा किया जा सकता है। चलिए, द मैन इज ब्लेस्ड टू हैव द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू स्टैंजा 2 ऑफ द पोएम, तो दो पैराग्राफ के दो स्टैंजा जो दूसरी लाइन है उसके हिसाब से जो मनुष्य हैं उनके पास क्या आशीर्वाद की तरह है, क्या हो तो वो ब्लेस्ड रहेंगे, आशीर्वाद रहेंगे, मतलब क्या ऐसी चीज़ हो जिससे वो उन्हें वरदान की तरह काम करेगा। तो प्योर एयर टू ब्रीथ एंड लैंड टू ग्रो फूड, शेयर्ड इन समर्स एंड फायर वुड इन विंटर, साउंड स्लीप एंड रिलैक्स स्टडी, मेंटल पीस एंड क्वाइटनेस। तो क्या हो उनके पास, बी सही है, शेयर्ड इन समर्स एंड फायर वुड इन विंटर्स। बता रहे हैं कि गर्मियों में छाया हो और सर्दियों में आग जलाने का साधन लकड़ियाँ हों जिससे आग जलती रहे, तो ये उनके क्या करेगा, आप वरदान की तरह काम करता है। आपको भी पता होगा कि अभी सर्दियां हैं तो आग जलती मिल जाए तो बहुत अच्छा लगता है, और गर्मियों में धूप होती है तो छाया हो ना, तो छाया में खड़े होकर बहुत अच्छा लगता है। चलिए, विच पोएटिक डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन द सेकंड स्टैंजा ऑफ द एक्सट्रैक्ट, एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन, सिमिली और मेटाफोर। तो ए आपका है एलिट्रेशन, हैज बीन एलिट्रेशन यूज किया गया है, एलिट्रेशन हैज बीन यूज्ड इन द सेकंड स्टैंजा फॉर द ऑफ द एक्सट्रैक्ट। रिक्त स्थान involves the transfer of giving information from one person to another or from one form to another, information gap activity, opinion gap activity, reasoning gap activity और preference gap activity। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है, ए होगा इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटीज इन्वॉल्व अ ट्रांसफर ऑफ गिविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर और फ्रॉम one from another. Information gap activities are communicative activities for two or more learners. It is also known as information exchange. 17 है, as a teacher while designing the task to be conducted in the language classroom, what criteria will you take into consideration? A, task should be promote attention to meaning, purpose and negotiation. B, task should cater the needs of the learner. C, task should provide opportunities for language practice, और D, task should promote her consciousness। तो आपके यहाँ कोड दिए हैं, ए है ए बी सी, बी सी डी, तो आपका सी सही है, ए बी सी डी चारों सही है। अब यहाँ पे आपकी मैचिंग है, मैचिंग में क्या है, क्लासीफाइंग, इंड्यूसिंग, कंसेप्ट मैपिंग और टेकिंग नोट्स। तो आपका है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो इसमें आपके नीचे कोड दिए हुए हैं, अब आपको मिलाना है किससे सही होगा। देखिए, तो आपका सही ऑप्शन है डी, क्लासिफाइंग, पुटिंग थिंग्स दैट आर सिमिलर टुगेदर इन ग्रुप्स, इंड्यूसिंग, इंड्यूसिंग का आपका होगा फर्स्ट, वो है आपका लुकिंग द पैटर्न्स एंड रेगुलरिटीज, कॉन्सेप्ट मैपिंग इसका आपका होगा सेकंड, सेकंड ही है, शोइंग द मेन आइडियाज इन द टेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ मैप, और टेकिंग नोट्स, राइटिंग डाउन द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन अ टेक्स्ट इन योर ओन वर्ड्स। इसे आप बड़े आसानी से कर सकते हैं, देखिए लिखा भी हुआ है यहाँ पे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ क्लासरूम स्टूडेंट एंड टीचर आर डिस्कसिंग द थ्योरी ऑफ चोम्स्की। चोम्स्की का सिद्धांत को डिस्कस कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। वन ऑफ देम इज शेयरिंग द क्रिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द थ्योरी एंड इट्स इम्प्लीकेशन विद द होल क्लास। हियर द होल क्लास इन्वॉल्व इन विच टाइप ऑफ लिसनिंग, एम्पैथेटिक लिसनिंग, कंटेंट लिसनिंग, एनालिटिकल लिसनिंग और एप्रिशिएटिव लिसनिंग। तो सी जो है वो आपका सही है, सी है एनालिटिकल लिसनिंग। कंसीडर द स्टेटमेंट। ए है एक्सपोजिटोरी राइटिंग इज यूज्ड फॉर डिफाइनिंग एंड इंट्रोड्यूसिंग डिफरेंट कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज टू द रीडर। बी है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इज कॉमनली यूज्ड बाय प्रोफेशनल मार्केटिंग पीपल टू परसुएड अदर्स। तो ए है ए इज राइट, बी इज राइट, सी ए और बी बोथ राइट, और डी ए और बी बोथ आर रॉन्ग। तो डी सही है, ए और बी दोनों गलत है। In a classroom, a teacher, by providing a text to the student, asks to gather the most important information quickly and share it with others. Hence, in which type of reading the students are involved in? Skimming, scanning, intensive reading, extensive reading.
तो आपका जो सही उत्तर है वो है दोस्तों आपका स्किमिंग। ए आपका सही है, स्किमिंग आपका सही उत्तर है। स्किमिंग क्या होता है? रीडिंग टेक्निक ऑफ रीडिंग रैपिडली इन ऑर्डर टू गेट जनरल ओवरव्यू ऑफ द टेक्स्ट। ये स्किमिंग क्या होता है? स्किमिंग एक तकनीक होती है कि जल्दी जल्दी पढ़ने का, ताकि आप पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू जल्दी से पढ़ के पता लगा सकें। चलिए, ए लैंग्वेज टीचर शुड प्रोवाइड ड्यूरिंग सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग कंप्रेंसिबल इनपुट, ड्रिल, गुड प्रॉम्प्ट्स, स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट। तो आपका सही उत्तर है वो आपका होगा ABC, ABD, ACD, BCD। तो सी आपका सही उत्तर है, सी होगा AC और D। चलिए, A student portfolio is a purposeful collection of pieces of student work. B. Portfolio can encourage students to evaluate their own strength and weakness. तो A is right, B is right, A and B both are right, A and B both are wrong। तो C आपका सही उत्तर है, C हो जाएगा A and B both are right। Select odd one out। A. पोर्टफोलियो कैन, जो ऑड है, जो तीनों से अलग है, उसको आपको बताना है। पोर्टफोलियो कैन बी एन इफेक्टिव वे टू कम्युनिकेटिंग विद पेरेंट्स बाय शोइंग कॉन्क्रीट एग्जाम्पल ऑफ स्टूडेंट वर्क। Portfolio can empower learners to assess teacher capabilities. Portfolio can provide a mechanism for the student-centered assessment. Portfolio can provide teachers and students with opportunity to reflect। तो B जो है वो आपका सही उत्तर है, B हो जाएगा। Portfolio can empower learners to assess teacher capabilities। चलिए, if a teacher is planning the learning task for a student, then the task should be simple and easy to perform, complex in nature, equal to the level of learners, slightly higher than the level of learners। तो D आपका सही उत्तर है, D हो जाएगा slightly higher than the level of learners। If a teacher is planning the learning task for student, then the task should be slightly higher than the level of learners। A teacher is asking the student to write essay every month and submit them for assessment, and the purpose of teacher is assess the considerable progress of a student, collect the different writing of a student, provide grades to the student, choose the best writing for award। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है, ए है, assess the considerable progress of student। चलिए, a Tamil young boy find a job in Canada. There he starts to stay in locality where most of the people talk in Punjabi language. Staying with them, the boy also starts to talk in Punjabi. Within few days, which was a totally new language to him, and the process by which the Tamil boy start to converse in Punjabi language will be called language learning, language acquisition, language immersion, language training। तो आपका बी सही होगा, language acquisition, क्योंकि वो वहाँ रहा तो उसने उस लैंग्वेज को क्या कर लिया, अडेप्ट कर लिया। चलिए, इन अ लैंग्वेज क्लासरूम फॉर इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ लर्नर, अ टीचर शुड highlight the mistake of learner, provide a standard structure to learn, create suitable condition to communicate, present a standard example of communicating। तो C जो है वो आपका सही उत्तर है, C होगा, create suitable condition to communicate in a language classroom for improving the performance of learner, a teacher should create suitable condition for communicate। Thus the correct answer is option C। During the classroom presentation, the main focus of learner should be on meaning making, कवरेज ऑफ फैक्ट्स, स्लैंग्स एंड जार्गन्स, कंप्लीशन ऑफ प्रेजेंटेशन। तो आपका सही उत्तर होगा यहाँ पे ए। ड्यूरिंग द क्लासरूम प्रेजेंटेशन द फोकस ऑफ लर्नर शुड बी ऑन मीनिंग मेकिंग। द करेक्ट आंसर है ए। मैचिंग है आपकी सोशियो कल्चर, इंटरेक्शनल, जेनरी, कॉग्निटिव। तो आपको यहाँ कोड दिए हुए हैं, डी कोड आपका सही है, ए का सेकंड, बी का फोर्थ। आइए बताते हैं। सोशियो कल्चर, language is a communicative activity in which the social context custom are central. International, language is a vehicle for the realization of interpersonal relation. Generally, language is governed by discourse, specific terms and text for different purpose. Cognitive, language is the acquisition of abstract knowledge and involve properties of mind। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो है
आपके इंग्लिश के प्रश्न खत्म हुए, आपके हिंदी के मैं करा दूंगा। सोशल साइंस के 60 प्रश्न जो आते हैं वो मैं आपको पूरे करा दूंगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे। ऐसे ही वीडियो को देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।